will learn about SST Chapter 8 for Class 6. So let's go. Okay, so let's go please. Unity in diversity और many in the one. So hello everyone. So आज इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका, जो थीम सी के अंदर आता है सोशल साइंस का. तो चैप्टर का नाम है Unity in diversity or many in the one. And yes, I'm going to explain both in Hindi as well as in English. So here let us start by reading a beautiful lines by Rabindranath Tagore. तो यहाँ पे हम एक स्टार्ट कर लेते एक चैप्टर को. ये एक अच्छी सी लाइन है जो कि लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं आइए समझते हैं. ओ ग्रैंड मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर इज दैट, see, we have so many people in our country, isn't it? He is granting a wish that let him be able to help the one. Okay, despite there are so many people in this world, let him feel the pain of each and every one. Okay, each and every one, and let him be able to help that very person. Despite there are so many other people, let him feel the pain of each and everyone. That is what he is trying to say here. तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो एक प्रेयर ग्रांट कर रहे हैं भगवान से कि वो एक हर व्यक्ति का जो बहुत सारी भीड़ में भी वो उस एक व्यक्ति की पीड़ा को वो पहचान सके ताकि वो उसको हेल्प कर सके. मतलब वो हर एक व्यक्ति का पीड़ा को जानना चाहते बहुत सारी भीड़ में भी. ओके, अगर बहुत भीड़ भी है तो भी वो ये विश ग्रांट कर रहे हैं कि वो हेल्प कर सके और उस एक व्यक्ति की पीड़ा को वो जान सके और महसूस कर सके और हेल्प कर सके. ठीक है, और दूसरा लाइन देखते हैं जो कि श्री औरोबिंदो जी ने लिखा हुआ है. The principle of unity in diversity, which has always been normal to India, and its fulfillment, the fundamental course of our being and its very nature, and in many the one would place her on the sure foundation of her swava and swadharma. See here, what is the name of this chapter? Unity in diversity or many in the one. See, unity in diversity. Say, as India is a very diverse country, you will find so many people who speaks different culture, who follows different custom, who speaks different language, okay, who follows different traditions, isn't it? In each and every state, within a state also you will find people speaking 3 to 4 languages, isn't it? Within the region also you will find people of diverse nature. So in this chapter here, this diversity, yet there is a principle of diversity, isn't it, in our country, but there is always unity. We are always one and we are always united and we became many in the one. So here this line, this Aurobindo ji is also trying to say that this principle of unity in diversity has been a very normal to India. Why? We have always been celebrating this unity in diversity, and this also fulfilled the fundamental course of being and its very nature. Okay, and that many in one, and these, because of this celebration and unity in diversity, this will surely make the foundation for what? Swava and Swadharma, means this is the one which is going to make foundation to be to do good. Swava means nature, isn't it? And Swadharma means to do our duty, isn't it? So this is the core foundation for fulfilling our duty as well as being good to other. Being our nature should be good, isn't it? If you wanted to be good to other, we should be good from within. So this unity in diversity, this fulfills the fundamental course of a living being or of a being, to make their nature good and to be dutiful in each and every situation. So that is why yet there is unity in diversity. We always celebrate this diversity in our country. So here in this chapter we are going to learn about this difference diversity we have in our country. So this is a very interesting chapter. Okay, so यहाँ पे ये देखो दूसरी लाइन है जो कि लिखी हुई है श्री औरोबिंदो जी ने. ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखो, जो चैप्टर का नाम है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स देखो एकता है विभिन्नता में. हम जैसे हमारे देश में बहुत डाइवर्स है कि नहीं, बहुत सारे
भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे टाइप के ड्रेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं, है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये सब एकता बना के एक साथ ही रहते हैं, सेलिब्रेट कर उस एकता को सेलिब्रेट करते हैं। देखो आपकी कम्युनिटी में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अलग रीजन से आए हैं, अलग भाषा बोलते हो, अलग टाइप के वो ड्रेस डालते हैं, अलग टाइप के वो खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एक नेबर हो सकते हैं जो कि मुस्लिम है, दूसरे नेबर हो सकते हैं जो कि क्रिश्चियन है, तीसरे नेबर हो सकते हैं जो कि जैन होंगे, चौथे नेबर हो सकते हैं जो कि पारसी होंगे। वो सब अलग अलग ट्रेडिशन को फॉर्म करते हैं, लेकिन एक ही कम्युनिटी में रह के वो क्या दिखा रहे, यूनिटी दिखा रहे। तो ये यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे, जो ये यूनिटी है जो कि इंडिया में काफ़ी नॉर्मल है, जो कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई इतना असर नहीं पड़ता है कि नहीं। तो यही एक चीज़ है जो फुलफिल करेगी, ठीक है, यही एक चीज़ है जो फुलफिल करेगी हमारी फंडामेंटल कोर्स को। जैसे हम अपने आप को अच्छे बनाते हैं, जैसे स्वभाव और स्वधर्म को ही। ओके, सो समझ लग रहा है सभी को। ओके, तीन बड़ी क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। What is mean by unity in diversity in the Indian scenario? तो इंडियन के हिसाब से, अपने हमारे देश भारत के हिसाब से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। तो ये डाइवर्सिटी में से ऐसी कौन सी डाइवर्सिटी है जो कि बहुत ही एक अलग से वो चमक के आती है, ठीक है, जो स्ट्राइक करती है। और तीसरी है, हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। हम यूनिटी कैसे बनाते हैं, विभिन्नता बहुत सारी हमारे में, ठीक है, हमारे देश में डाइवर्सिटी काफ़ी है, लेकिन इस डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमने कैसे एक दूसरे को यूनाइट करके रखा है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिवाइड करने की कोशिश की। क्या यूज़ किया इन्होंने, यूनिट, डिवाइड एंड रूल रिलीजन को, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के लोग हमारे देश में, बहुत सारे रिलीजन जो फॉलो करते वो ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की हिंदू और मुस्लिम के बीच में। लेकिन आखिर में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो लोग सक्सेसफुल रहे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, जीत किसकी हुई, यूनिटी की हुई, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए थे, एक हो गए थे। जब एक हो गए तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया, और आज हमारा देश क्या है, आज़ाद है कि नहीं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। डाइवर्सिटी है उसके बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। A rich diversity. If you travel through India by train, you will notice not only changing landscape but also many different types of dresses and food. You will hear different language, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way. Even within your own region, you will often come across people from other parts of India with different customs and tradition. This is India's rich diversity, and it is usually the first thing that strikes visitor to our country. See, if you travel your country, India, okay, if for example, if you take a train from Delhi, okay, let us just say from Delhi to Kerala, okay, or or Tamil Nadu, all right, then on that way you will find different landscape which has been changing. In some place you will find mountains, in some place you will find plateaus, in some place you will find again plains. And with the changing landscape, you will also find different types of dresses being worn, okay, and different types of foods being eaten by the people, isn't it? We have different types of food, we have different types of dresses. Here, different type of language. Some of the language will be familiar to you, and some of them will be unfamiliar to you. And also, you will see different type of script. You will be in some place you will be seeing a Bengali script, isn't it? In some place you will be seeing written in Hindi. In another place you will be seeing again written in Sanskrit also. And another place you will be seeing written in English also. And again you go to the southern part, you will be seeing the script which has been all written in the Tamil script, isn't it, or Kannada script. So you will find different script as well on the way. And even within your own region also, you will often come across people from different parts of India. They have been come and they have been settled there. For example, Delhi, you will find in Delhi from all the parts of the country of the India, isn't it? They have came and they have settled over there in search of what? In search of job, isn't it? So they are coming and they are settling there. So you will find different types of people also, isn't it? So what is this? And they are again following different customs and tradition within the very state also, isn't it? And this is the India's rich diverse also, isn't it? This attracts the other visitors to our country. When they visit country, they see so much of diverse in our diversity in our country. So this attracts them. Okay, these features of our country. ओके, सो फ्रेंड्स, अभी आपको समझ लग रहा है सब कुछ?
ओके, सो आई होप समझ लग रहा होगा. ओके, सो ओके. ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डाइवर्सिटी तो रहेगी ही, तो सच डाइवर्सिटी इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. तो ये सरप्राइज होने की कोई बड़ी बात. ओके, सो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है? इंडिया में. ओके, इंडिया में ही है, हमारे भारत में है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन. ओके, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रकार के लोग, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको विभिन्नताएं तो उसमें दिखेगी ही. तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, देखते हैं. इन द लेट 20th सेंचुरी द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो कि साइंस ऑफ, जो पढ़ते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बींग, ओके, ऑफ सर्वे of India, a national organization conducted a massive survey called the People of India Project of 4,635 communities across all the states of the country. It counted 325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians may be called migrants, in the sense people not living near their birthplace or with their original community. देखो यहाँ पे पहला तो हमें एक डेटा मिल गया कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है, और करीब करीब 18% जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? वो इंडिया में, हमारे भारत में. और ये कोई सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है कि इसीलिए डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे. ठीक है, तो 20वीं सदी के आसपास एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे एक हुआ था इंडिया में, ठीक है, जिसका नाम से पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से हुआ था. इस पे इन्होंने क्या देखा, इस सर्वे में इन्होंने क्या, इसकी रिपोर्ट क्या थी कि 4,635 कम्युनिटीज़ है इंडिया में, इंडिया के अंदर ही, ठीक है, अक्रॉस ऑल स्टेट्स इतने सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं. ये 20वीं सदी की बात है, ठीक है, अभी तक और ज़्यादा हो गई होंगी. और उसके बाद इन्होंने क्या काउंट किया? 325 लैंग्वेज काउंट किया. ये सिर्फ लैंग्वेज की बात कर, लेकिन डायलेक्ट्स इससे भी ज़्यादा है, ठीक है. और इसमें इन्होंने और क्या चीज़ देखा? 25 स्क्रिप्ट्स पाई इन सारे ऑल ओवर इंडिया. और इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया, क्या किया, जो कि बहुत सारे भारतीय हैं जो कि वो माइग्रेंट्स भी है. माइग्रेंट्स क्यों है? क्योंकि वो अपने स्टेट को, अपने रीजन को, अपने कम्युनिटी को जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसको छोड़ के वो दूसरे रीजन में बहुत सारे लोग जाके सेटल हुए, और उनके पेरेंट्स के बर्थ प्लेस को आपको पता करना है. दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट्स मदर टंग वो कौन क्या भाषा वो बोलते हैं, और मदर टंग के अलावा और कौन सी भाषा है जो वो बोलते. देखो इंडिया पे एक और चीज़ है, ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो उनको 2 से या 2 वो लैंग्वेज बोल सकते हैं मिनिमम में. ऐसे बहुत लोग हैं जो कि 4 से 5 तक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल, हिंदी ज़्यादातर सबको ही आता है, और इंग्लिश हर कोई बोल लेता है, समझ लेता है, तो 2 लैंग्वेज हो गई. और अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन वो उनकी एक मदर लैंग्वेज होती है, एक मदर टंग होती है, जो अपने घर में बात करते हैं, जो उनका एक डायलेक्ट होता है जिससे वो घर में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो 3 लैंग्वेज तो ऐसे ही ज़्यादातर लोगों को आती है. और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो हमारा हिंदी है, ये हिंदी जो भाषा है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लो, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं. हिंदी इज़ नॉट अ national language. So while diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered how, in the face of such bewildering diversity, can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. See, despite there is diversity in our country, it is very beautiful, and it used to be very colorful, isn't it? Diversity means colorful, various color, you will find so many variants, so many varieties are there, isn't it? Not only in foods, you will find varieties of dresses, you will find varieties of customs, you will find varieties of language, isn't it? Varieties of thoughts, varieties of peoples, isn't it? With a different feature, they have a different feature. See, a person from the northeastern region have a mongoloid feature, a person from the northern part of the India again have a different feature, Aryan feature, isn't it? Again, in the person from the South Indian, they have a different feature. So you will find variety, but it is not so easy. So here one of the British historian we are naming Vincent Smith, he wondered, there are so much of diversity, how is the history of India going to be written? He was confused. So here the answer of this confusion was that was in fact found that India offers unity in diversity. So there were so many varieties of people, so many people, but yet they were all one, they were all unite, isn't it? So his query, his confusion was solved by what? Unity in diversity. Despite there are so many differences, they are one in many, isn't it? So यहाँ पे
इस लाइन पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ज़्यादा की देखो डाइवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत कलरफुल भी लगता है, लेकिन ये जो एक ब्रिटिशर्स थे, एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ वंडर्ड के नाम से, ठीक है, सॉरी विंसेंट स्मिथ के नाम से, वो ऐसे सोच रहे थे, वो वंडर्ड कर रहे थे कि इतना, उसके बाद हमें क्या पता लग जाएगा, डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी यूनिटी है, लेकिन फिर भी वन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे खाना को फूड फॉर ऑल, मतलब डाइवर्सिटी है लेकिन ऐसे कुछ फूड्स है जो कि हर जगह वो खाते, सारे देश डिफरेंट टाइप्स के फूड है। हाँ, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो एक रीजन में मिलती है और दूसरे रीजन में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी एक ऐसी कुछ फूड्स है, जो सीरियल्स है, जो दालें हैं, ठीक है, वो सब लोग खाते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, लेकिन वो है तो वही चीज़, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। वो तो है तो एक चीज़, लेकिन वही है कि डिफरेंस क्या पे, अलग अलग तरीके से हम लोग खाते हैं उसको। Some of you will have eaten foods from different regions of India। तो हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो अलग रीजन्स के अपने फूड टेस्ट कर रखे हैं कि नहीं, अलग अलग, जैसे एक ही रीजन में मिल जाता है आपको, अगर होटल में जाओगे तो आपको चाइनीज़ फूड भी मिल जाएगा, आपको साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, आपको नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएगा, आपको नॉर्थ ईस्टर्न भी मिल जाएंगे, जो सारे आपके फूड्स आपको एक ही होटल में, आप अगर जाओगे किसी भी होटल में खाना खाने तो वहीं पर आपको मिल जाते हैं। तो आपने ऑब्वियसली टेस्ट तो कर रखा होगा डिफरेंट रीजन्स ऑफ फूड, उसका टेस्ट भी अंदर होता है, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस उनका क्या होता है, बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, ठीक है। तो उसी सेम इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वन, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, बहुत सारे, तो इसलिए मेनी। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे, the number of different dishes and preparation you can taste in India must be in their thousands if not lakhs। so ऐसे जो डिफरेंट डिशेस होते हैं, प्रिपरेशन जो आप डिफरेंट तरीके से बनाते हो, हज़ारों तरीके के होंगे या लाखों तरीके के होंगे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स एक ही है, ठीक है। Yet certain food grains are common to almost every part of the country। cereals such as rice, barley and wheat, millets such as pearl millet, बाजरा, शोरगुम जो कि जोवर है, finger millet जो कि रागी है, and pulses such as various kinds of dals। देखो various kinds of dals, and पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेती हूँ, फिर हम आएंगे इस मैप में, ठीक है। Dals and grams, all these are called staple grains because they are the basic food for the most Indian। Similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom and ginger are also used throughout the country। We could continue this list with some common vegetables, common oils, etc। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप बनाते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस होते हैं, लेकिन उनका इंग्रेडिएंट्स एक ही है, ठीक है। जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो दालें हैं, कुछ सीरियल्स हैं, राइस है, हर जगह पाए जाते हैं और हर जगह ये खाते हैं, है कि नहीं। व्हीट है, बार्ली है, मिलेट्स है, यहाँ पे जैसे पर्ल मिलेट्स, यहाँ पे बाजरा का नाम इन्होंने दिया हुआ है, जोवर का नाम इन्होंने दिया हुआ है, फिंगर मिलेट्स रागी का नाम इन्होंने दिया हुआ है, और जो बहुत सारे दालें हैं, जो जैसे राजमा दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, ग्राम्स, ये सब कुछ हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। सी हियर, डिस्पाइट वी हैव अ वैरायटी ऑफ डिशेस एंड देयर आर वैरायटी ऑफ thousands of taste, we can prepare it in thousands of ways, and in if not thousand, in lakhs of ways are there, but they are preparing out of the same one product, isn't it, out of the same one thing। And here example, as an example, cereals, isn't it, there are certain food grains which are available and common to every part of the country, cereals like rice, barley, wheat, isn't it, pearl millet, sorghum, ragi, finger millets, these various kinds of dals are there, isn't it, yellow dal, red dal, black dal, green dal, so many dals are there, isn't it, these are available in ओके गाइस, सो समझ लग रहा है सभी को, all parts of the country, isn't it। here see, it has been given, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे राजमा इस टाइप का मिलता है, यहाँ पे भी राजमा मिलता है, व्हाइट लोबिया मिलता है, बासमती राइस यहाँ पे मिलता है, मूंग दाल यहाँ पे मिलता है, मसूर दाल, देखो दाल तो सारे दाल है, सीरियल्स यहाँ पे भी राइस है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के राइस है, राइस मिल रहा है लेकिन ये वेराइटी ऑफ राइस है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ अलग है, इनका स्वाद अलग है, राइस ही है लेकिन अलग अलग वेराइटीज़ के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चने हैं, है ना, ये देखो मिलेट्स है, मेज़ है, अरहर की दाल यहाँ पे है, जोवर है, मेस है, ग्राम में देखो पिजन पी, राइस, यहाँ पे आपको हर जगह ये सारे कॉमन मिलेंगे, हर जगह पे यहाँ पे मिलेगा। कोलम राइस केरला में, तमिल में पोनी राइस, देखो राइस ही है लेकिन नाम अलग अलग है, कोलम राइस, पोनी राइस, सोना मसूरी राइस, देखो ये भी राइस ही है। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया ना, सो वी सी हाउ सेम इंग्रेडिएंट्स, देखो सेम इंग्रेडिएंट्स, दालें वही है,
जो स्पाइसेस वही है, सब कुछ है, यूनिटी हो गया, एक ही है, कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन डाइवर्सिटी। लेकिन फूड्स क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में बनाते हैं टू प्रिपेयर एन एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस। वही एक चीज़ को यूज़ करके अलग अलग तरीके का बनता है कि नहीं। तो जैसे कि राइस को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में, ठीक है, कपड़े के बारे में। कपड़े में कितना वैरायटी है, लेकिन एक ही कपड़ा यहाँ पे यूज़, एक ही कपड़े के हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उसके वैरायटीज़ कितने सारे हैं, उस चीज़ को हम लेके यहाँ पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करें, फूड को लेके तो हमने समझ गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है, मैनी वन इन मैनी कैसे। तो कपड़ों, स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेस, देखो आप देखोगे इंडिया पे हर रीजन में उनके एक अलग तरीका होता है कि नहीं। उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, अलग होता है, उनके कलर्स अलग होते हैं, उनके जो कपड़ा में जो वैरायटी, जो टेक्सटाइल यूज़ होता है वो अलग तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक कॉमन चीज़ को हम लेंगे, ठीक है, जो एक ही है, हर कोई उसको पहनता है। येट वी नोटिस ए कम्युनिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस। तो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस है, उसमें एक कॉमन चीज़ है, बस उसका पहनने का तरीका अलग है, उसका वैरायटी अलग है, उसका कलर अलग है, लेकिन है तो वो एक ही चीज़, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज, तो उसका मटेरियल अलग होगा, किसी में सिल्क यूज़ होता है, कहीं पे जॉर्जेट यूज़ होता है कि नहीं, कहीं पे अलग फैब्रिक्स यूज़ होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखते कौन सा है एग्जाम्पल आपके मन में भी आ रहा होगा, साड़ी, है कि नहीं। एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ कॉल दिस साड़ी। देखो साड़ी का क्या है, लेंथ एक ही होता है, हर कोई पहनता है, इंडिया में सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस है। लेकिन ये क्या करते हैं, अलग तरीके से पहनते हैं। देखिए गुजरात में वो अलग तरीके से साड़ी पहनेंगे, साउथ इंडिया में वो अलग तरीके का साड़ी पहनते हैं, और नॉर्थ इंडिया में फिर वो अलग तरीके से, आई मीन मेड बाय डिफरेंट पर्पस, ओके, sorry, different methods by methods of weaving. We'll example see here in the given here, see here, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के साड़ी मटेरियल्स दिख रहे हैं ना आपको, वीव करके जिसको बनाया हुआ है। एंड डिज़ाइन देखो, अलग अलग डिज़ाइन से, ये इस डिज़ाइन से अलग है, ये इस डिज़ाइन से अलग है। सम डिज़ाइंस आर पार्ट ऑफ द क्लॉथ वाइल अदर्स आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज वोवन। तो कुछ डिज़ाइंस ऐसे कि जो क्लोथ्स में जब वो वीव किया है उनको वैसे ही वो बनते हैं, और कुछ उसमें प्रिंट और निकल रहा है कि नहीं। आजकल जैसे आप देख, ऐसा ही एक वैरायटी था किस नाम से, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कम्स, isn't it? साड़ी रिफ्लेक्ट्स both unity as well as diversity. It's been worn by all the people throughout the country, isn't it, in all the parts of the India, but the way they wrapped it, it becomes different, isn't it? The material is different and the prints are different, the designs are different, but yet it is sari, that one thing, isn't it? So it reflects diversity. So you try to write in your own way, okay, in 100 to 150 words. I have already explained you. So let us see one more thing here, don't miss out. एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम India produced the finest cotton in the world, and Indian textile were exported as far as Europe. One beautiful type of printed cotton called chintz became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dress dropped sharply. Eventually, to protect their own product, England and France decided to ban the import of chintz from India. देखो बहुत टाइम पहले, ठीक है, बहुत टाइम तक इंडिया देखिए कॉटन्स में भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं। तो ऐसा ही एक वेराइटी था किस नाम से, चिन्स नाम से। तो इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था, यूरोप तक इसको एक्सपोर्ट किया जाता, पसंद करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक रीजन में अलग तरीके से ट्रैप होता है, दूसरे रीजन में अलग तरीके से। आपको नीचे मिलेगा, और यहाँ पे देखो ये ग्रेन्स रखने के लिए यूज़ कर रही है, यहाँ पे अपने आप को देखिए पिक्चर नीचे मिलेगा, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए मिलेगा। देखिए अपने आप को, जैसे ये फिशिंग वाला था ना, कंटिन्यूशन है, जैसे अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर रही है बारिश से। और ये क्या कर रही है, देखिए इसके साड़ी के पल्ले को यहाँ पे यूज़ कर रही है पानी लेने के लिए। तो ऐसे भी ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये लेडी क्या कर रही थी, जैसे ये गाय चराने आई है, तो गाय चराते ये थक गई होगी, तो ये लेटना चाह रही थी, तो इन्होंने अपने साड़ी का पल्ला को क्या किया, बिछा लिया, और उसी के ऊपर ये सो रही है, थोड़ा नैप ले रही है। तो ऐसे करके डिफरेंट यूज़ भी होते हैं साड़ी के, ठीक है। लिटरेचर पर साहित्य के बारे में हम देख लेते हैं, कैसे यूनिटी है साहित्य में, लिटरेचर को लेके यूनिटी कैसे है। लेकिन यूनिटी के साथ साथ, ये डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी कैसे, एक ही चीज़ को वो कैसे अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो हाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट आउट, ओके। तो लिटरेचर हमें ये बताता है कि, और एक एग्जाम्पल है लिटरेचर में भी कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। देखो आप इंडियन लिटरेचर को आप देखोगे वो बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के आपको लिटरेचर मिलेंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप्स के आपको लिटरेचर मिलेंगे, वेराइटीज़ ऑफ लिटरेचर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन दी वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेचर भी यहीं से है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स लिटरेचर, मतलब डिफरेंट है, सारे लोगों ने अपनाया हुआ इसको, एवरी इंडियन लैंग्वेज, सारी इंडियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, और इसको अपनाया गया है। और जैसे स्टोरीज़ वगैरह हम सुनते हैं ना, जब हम छोटे होते थे तो दादी वगैरह हमें स्टोरी सुनाती थी, कभी लोमड़ी की स्टोरी सुनाती, कभी हाथी की, कभी बिल्ली की, तो ऐसे ही ये स्टोरीज़ हैं, ओके, ये सारी स्टोरीज़ जो पंचतंत्र में होती है। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर भी रहती है, ठीक है। सी दिस टेक्स्ट अबाउट दिस पंचतंत्र, दिस वाज ओरिजिनली इट इज़ रिटन इन संस्कृत, ओके, बट इट हैज़ बीन adapted in almost every Indian language, means it has been translated in every Indian languages, and people have adapted it, people have read about it because it is very interesting and it is very fascinating as well. तो अभी कुछ साल पहले ये सब कुछ लिखा गया, ठीक है। जैसे कि देखो रामायण में जैसे वाल्मीकि के रामायण एक है और तुलसीदास के रामायण है, दोनों आप रामायण देखोगे थोड़ा हल्के फुल्के आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन कहानी क्या है, वहाँ पर कहानी तो एक ही है। राम किसको बचाते हैं, राम ने किसका विनाश करना है, रावण का विनाश करना है, रावण सीता जी को किडनैप करते हैं कि नहीं, लेकिन कहानी एक ही है, लेकिन वो बताने का तरीका फिर कुछ ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ जो है आपको अलग मिलेंगी, ठीक है। कहानी एक ही है लेकिन अलग तरीके से उसको सुनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो कहानी एक ही है लेकिन उसको अलग तरीके से सुनाया, डाइवर्स वे पे सुनाया, तो डाइवर्सिटी मैनी बन गया ना, तो मैनी इन दी वन, ओके। बहुत सारे कुछ निकल आए एक ही चीज़ से, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आया। आई होप आपको समझ आया हो ये। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेंगे ट्राइबल कम्युनिटी का, ठीक है। As I have told you that they have their own state in so many different regions. So according to the reasons, the people with whom he have stayed, for example in Delhi he have stayed, or in Mumbai he have stayed, or in South India he have stayed. Okay, South Indian state he have stayed. Then Delhi people will have different version of story about Ranbir Kapoor, isn't it? And Mumbai people will have a different version of story about Ranbir Kapoor, and South Indian people will have a different version of story about Ranbir Kapoor. ओके, सो आई होप सभी को समझ लगा होगा, ओके। सो अगर आपको ये चैप्टर में कुछ समझ लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, और बाय बाय, थैंक यू।